નંબર વિશ્વના સર્વજીવનું મંગળ થાય એવી સુંદર ભાવના સાથે આજના પ્રવચનની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલભદ્રાધ્યાય જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલ શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિત નિરતા ભવन्तु ભૂતગણા દોષા પ્રયાન્તુ નાસમ સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોક. એક રૂપક કથાથી આજના પ્રવચનની આપણે શરૂઆત કરીએ. એક લેખક હતા, પોતાના મિત્રોને પત્રો લખે. એકવાર એ રસ્તામાં જઈ રહ્યા હતા તો રસ્તામાં જતા જતા એમને એક સ્નેહી મળ્યા. વાતો કરતા કરતા સ્નેહી છૂટા પડ્યા. સ્નેહીને બસમાં જવું હતું એટલે સ્નેહીએ ઉતાવળથી પેલા લેખકને કવર આપ્યું. લેખકને કહે છે કે હવે આ કવર જે નજીકનું પોસ્ટ ઓફિસનું બોક્સ હોય એમાં તમે નાખી દો, મારે બહુ ઉતાવળ છે અને કવર બહુ અગત્યનું છે અને આજે ને આજે પહોંચાડી દેવાનું છે. લેખક મિત્રે, એમને બી ઉતાવળ હતી, એને કવર હાથમાં લીધું અને સીધા ચાલતા ઝડપથી ચાલતા ચાલતા નજીકના પોસ્ટ બોક્સ પાસે ગયા. કવર નાખવા જાય છે એમાં એમની કવર પર નજર પડી તો કવર પર જે એડ્રેસ હતું એમના મિત્રનું હતું. એમને જરા આશ્ચર્ય થયું અને કવર પર જે અક્ષર લખેલા હતા, જો हैंड राइटिंग थे तो लेखक को लगा कि मेरे हैंड राइटिंग लगते हैं, ऐसे अच्छे हैंड राइटिंग है. લેખક ને થયું કે આ અક્ષર તો મારા જોયેલા છે, મારા છે એવા લાગે છે, પણ એમને બહુ ઉતાવળ, બહુ ધ્યાન નહીં આપ્યું અને કવર એમને નાખી દીધું પોસ્ટ બોક્સમાં. વિચાર કરે કે આ મારા મિત્ર ને આ મારા અક્ષર જો આ કવર છે ને આ, એટલે એમને કઈ ખ્યાલ નહીં આવ્યો. એટલે એમને જે એમના જે મિત્ર હતા જેમને કવર આપ્યું હતું એને કે એમને હું મળું. એટલે બીજે દિવસે પેલા મિત્રને મળવા ગયા અને પૂછ્યું કે આ કવર કોનું હતું ને તમે લખ્યું હતું? તો પેલા મિત્ર કે ના, આ તો કે મારા એક મિત્રે મને કવર આપ્યું હતું, બહુ અગત્યનું હતું અને પોસ્ટમાં નાખવાનું હતું, પણ ભૂલમાંથી મારી પાસે 3-4 દિવસ રહી ગયું. કેટલા દિવસ રહી ગયું? 3-4 દિવસ રહી ગયું. બહુ અગત્યનું હતું એટલે તમે જતા હતા મેં તમને આપ્યું. કે તમારી પાસે કવર આવ્યું કેવી રીતે? તો કે મારા એક મિત્ર હતા, એને મને કવર આપ્યું, એને કીધેલું બહુ અગત્યનું તો આજે ને આજે નાખી દેજે. તો મિત્ર કોણ હતા? તો મિત્ર આ હતા. લેખક વિચાર કરે કે આ મિત્રને તો મેં કવર આપ્યું હતું. લેખક વિચાર કરે છે કે મિત્રને તો મેં કવર આપ્યું હતું, મેં કીધું હતું કે ભાઈ તું અત્યારે નાખી દેજે, મારા મિત્રને તરત આ પત્ર પહોંચાડવાનો છે. લેખક તો મૂંઝે ગયા. એમને ધીરે ધીરે બધો ખ્યાલ આવી ગયો કે આ તો મારું જ લખેલું કવર હતું, જે મેં મારા મિત્રને આપેલું, પેલા મિત્રને આપેલું, પેલા મિત્રને પેલા મિત્રને આપેલું. એમ કરતા કરતા કવર પોસ્ટ ઓફિસમાં પહોંચ્યો. છેલ્લે મારી પાસે આવ્યું અને અઠવાડિયું થઈ ગયું. જો વાત નાની છે, વાત પણ ખૂબ ગંભીર છે. આપણે આપણા કામ હંમેશા બીજા પર ઢોળી દઈએ છીએ. આપણા કામ આપણે જાતે કરતા નથી અને તેથી કામમાં જે ફળ મળવું જોઈએ આપણને મળતું નથી. संतोष बहन, आप देखो, अभी हमारा काम करने की
क्या होती है, देरासर जी। मंदिर होता है, मंदिर हाँ, को हमने पुजारी को सौंप दिया। बिल्कुल सही। हाँ। खाना खाना भी हम नहीं पकाते हैं, और हम्म। नौकर को सौंप दिया। सही सही। हर एक चीज हमने दूसरे को सौंप दी है, तो क्या होता है, होता वही है। फिर हमको जो काम के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो भाव आना चाहिए, वो भाव आते नहीं है। भगवान की पूजा, हम भगवान को कभी अपने हाथों से भगवान को साफ नहीं करते हैं, भगवान का स्नान नहीं करवाते हैं, उसका केसर नहीं हम हमने खुद के हाथों से घसते हैं, तो पूजा के पीछे हमारा भाव कैसे आएगा। हम भगवान को सिर्फ 9 अंगों पे टीका करके निकल जाते हैं, तो हमारा जो भगवान के प्रति जो लगाव होना चाहिए वो कभी नहीं आता है, तो अपनी पूजा का, अपने कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। आज परिस्थिति बहुत विषम है। पहले जमाने में कभी कार्य दूसरे को नहीं देते थे, सब कार्य अपने हाथों से करते थे। अभी सब कार्य दूसरों को दे देते हैं, और अपने आप को पैसे से, जो कितने कार्य होते हैं बस पैसे से करवाते हैं। सही। देखो, देखो आज हमारे वहाँ जैन धर्म में ये ज्यादा है, बदी प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, घर में लग्न प्रसंग अभी क्या होता है, पहले क्या होता था, घर में इवेंट लग्न, में। आज तो कितने इवेंट में। दिन सगा संबंधी अपने घर पे आते थे, बराबर है, घर पे सब बनवाते थे खाना, रसोईया सिर्फ एक दो आध वानगी बनाते थे, मिठाई सब घर पे बनती थी। अभी सब चला गया, अभी लग्न 2 घंटे के हो गए, तो फिर जो लग्न ऐसे हुए, तो देखो आज परिस्थिति क्या है, जो लग्न होते हैं उसके पीछे अभी एक प्रति के समर्पण भावना नहीं है। लगने के बाद डाइवोर्स भी तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि लगने के पीछे जो लगाव होना चाहिए वो नहीं रहा है। तो हमारे धर्म में भी ऐसा है, हमारी सब क्रिया हमने दूसरों को दे दी है, तो हमको जो कार्य करते हैं, जो कोई क्रिया करते हैं, उसका फल जिसी तरह प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। हमारे साधु भगवान, गुरु भगवान यही कहते हैं कि तुम जो भी कार्य करो पूरी निष्ठा से करो, पूरी लगाव से करो, अपने हाथों से करो, वो कार्य का फल मिलेगा। हमारे जीवन में ये सब भगवान के जो कुछ अनुष्ठान है, जो कुछ क्रिया है, अपने हाथों से करें, पूरे लगाव से करें, पूरे समर्पण भाव से करें, तो वो क्रिया का फल हमको प्राप्त होता है। संतोष बहन, ये जी। सब हमको, ये सब हमको बहुत अभी, अच्छा। बहुत अच्छा सिखाया आपने इसके माध्यम से। ये सब हमारे अभी क्या है, अभी सब चीज ऐसे होती है कि पैसा दे दो और करवा लो। हमारी, हमारे मन के पीछे अभी पैसे से काम करवा लो वही भावना रह गई है। ये सब हमको अभी परिवर्तन की जरूरत है। अगर हम धर्म के फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो सब क्रिया अपने हाथों से करें। देहरासर में जाए तो भगवान का केसर हम घसे और वो केसर से पूजा करें, भगवान का पक्षाल हम करें, भगवान को साफ हम करें। जब वे करेंगे तभी भगवान के प्रति अपना भाव अपने आप जागृत होगा। वो समर्पण भाव, ये सब तब प्रेम भाव तभी जागृत होंगे। ये सब अपने जीवन में हम अपनाएं। आज हम आगम का 45 आगम में 43 4 आवश्यक सूत्र में जो छेल्ला आगम है, लास्ट आगम, लास्ट आवश्यक सूत्र,
उत्तरायण, उसकी बात हम करेंगे। उत्तरायण बहुत फेमस है अपने जैन धर्म के, और जो अच्छे अच्छे ग्रंथ है उसमें उत्तरायण का स्थान है। इंडियन गैजेट में लिखा है कि दिस इज इनवैल्यूएबल एसेट्स टू द मैनकाइंड। उत्तरायण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवान महावीर ने अपने निर्वाण का समय जान लिया था। भगवान महावीर ने પોતાનો નિર્વાણનો સમય ખબર હતી। નિર્વાણના સમયના છેલ્લા 2 દિવસ ભગવાન છઠ કરે છે। પોતાનો નિર્વાણનો સમય જાણીને ભગવાન છઠ કરે છે અને પોતે 48 કલાક 16 પ્રહર સલંગ દેશના આપે છે। ભગવાન મહાવીર સ્વામી વિચાર કરે છે હવે મારો નિર્વાણનો સમય નજીક છે અને જતા જતા જગતના જીવોના હિત માટે હું એવી વાત કરીને જઉં કે જગતના જીવોનું કલ્યાણ થાય, અને એ બધું આ ઉત્તરાયણમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે। જર્મન હકોબી નામના જે જર્મન જૈન ફિલોસોફર થઈ ગયા, એમને ઉત્તરાયણ પર આખું ઇંગ્લિશ ભાષાંતર કરેલું છે અને એમને કીધેલું છે કે ઉત્તરાયણ એ જૈન સાધુ, જે જૈન સંયમી જીવનનું એક આરીસો છે, ઇઝ અ મિરર। અને આજે પણ સાધુ ભગવંત માટે ઉત્તરાયણ એ ભૂમિઓ છે। 2000 ગાથા છે, 36 અધ્યયન છે અને એમાં ભદ્રબાહુ મહારાજ સાહેબ, હરિભદ્ર મહારાજ સાહેબ, એમ અનેક મહાપુરુષોએ એના પર ટીકા લખેલી છે। આજે પણ દિવાળીના દિવસો આવે એટલે છેલ્લા 3 દિવસો ગુરુ ભગવંતો ઉત્તરાયણનું વાંચન કરે છે। એટલે ઉત્તરાયણ આપણા જીવનમાં, સર્વના જીવનમાં વણાઈ ગયેલું છે। ઉત્તરાયણ ઉપર ખૂબ ગુરુ ભગવંતોએ ખૂબ એના પર ઉપમા લખેલી છે, એનો ખૂબ વર્ણન કરેલા છે, અદ્ભુત વર્ણનો છે। આપણે થોડીક વાત આજે કરશું। એક મહાપુરુષે લખેલું છે કે ઉત્તરાયણ એ પરમ ઉર્જાનું કેન્દ્ર છે, જેમાંથી પરમાત્માની ઉર્જા વહી રહી છે। જેમ શિખર પરથી નદીઓ વહે અને સર્વ લોક એમાં નહીને પાવન થાય, એવી રીતે આ ઉત્તરાયણ દ્વારા પરમાત્માની ઉર્જા વહી રહી છે અને જગતના બધા સંયમી જીવો એમાં ડૂબકી ખાઈ અને પવિત્ર અને પાવન થઈ રહ્યા છે, નિર્મળ થઈ રહ્યા છે। આ ઉત્તરાયણ એક એવું કલ્પવૃક્ષ છે કે જેના સિંચન કરવાથી, જેની છાયા મેળવવાથી આપણને મોક્ષરૂપી ફળની પ્રાપ્ત થાય છે। આ ઉત્તરાયણ એ આગમનું જે જ્ઞાન જગત છે, જે જ્ઞાનનું ગગન છે, એમાં ઉત્તરાયણ મેઘધનુષ રૂપે ચમકી રહ્યું છે। ઉત્તરાયણ એક અજબ ગ્રંથ છે, એમાં મેઘધનુષ રૂપી 7 રંગો, એવા અનેક રંગોથી ઉત્તરાયણ રંગાયેલું છે। ઉત્તરાયણ વૈવિધ્યપૂર્ણ છે। એના જે 36 અધ્યયનો છે એમાં પહેલા 6 અધ્યયન ઉપદેશાત્મક છે। ભગવાને 6 અધ્યયનોમાં ઉપદેશ આપેલો છે। પછી બીજા જે 9 અધ્યયન છે એમાં આચાર બતાવેલા છે, સંયમ જીવનના આચાર બીજા 9 અધ્યયનમાં બતાવેલા છે। પછી 12 અધ્યયન છે કથાઓ છે। જો ઉત્તરાયણમાં અદ્ભુત કથાઓ, અનેક કથાઓ ભગવાને આજે 16 પ્રહર દેશના છે તો ભગવાને અનેક કથાઓ કીધેલી છે અને આજે કથાઓ આપણી પાસે વિદ્યમાન છે। અને મહાપુરુષો જ્યારે જે પ્રવચનો આપે છે
આ કથાનો આશરો લે છે. 12 અધ્યયનોમાં કથા છે, પછી 6 અધ્યયન સિદ્ધાંત, જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો પર છે. તો બીજા 3 અધ્યયન ફક્ત ખાલી ભગવાને પ્રશ્નના ઉત્તરો આપેલા છે. જો ઉત્તરાયધ્યનમાં છે ને કોઈ પ્રશ્ન કરતું નથી, અથવા પ્રશ્ન કરતા હશે પણ ભગવાને જાતે પ્રશ્નો કરી અને જાતેના ઉત્તર આપેલા છે, એવા 3 અધ્યયનો છે. એટલે આમ ઉત્તરાયધ્યન તમે જુઓ તો ખૂબ વૈવિધ્યપૂર્ણ છે. એક મહાપુરુષે કીધેલું છે કે આ ઉત્તરાયધ્યન વર્ષા ઋતુમાં મેઘ સમાન છે, જે આપણને નિર્મળ કરે છે, ચોખ્ખું કરે છે. ને વર્ષા ઋતુમાં શું થાય? વર્ષા ઋતુમાં આપણે સ્વચ્છ બનીએ. એમ આ ઉત્તરાયધ્યન વાંચી અને આપણામાં આત્માની અશુદ્ધિઓ જતી રહે છે, આત્મા શુદ્ધ બને છે. તો ઉત્તરાયધ્યન એક વર્ષા ઋતુ જેવું છે. તો ઉત્તરાયધ્યન એક શિશિર ઋતુ જેવું છે. શિશિરમાં ઠંડી પડે, બરફ પડે અને આખું આખું વન બળી જાય. આપણે ત્યાં લખેલું છે કે સંતોષ કે ઉપસમ ભાવ છે ને એ હિમ જેવો છે, કે જેમાં રાગ અને દોષ, મોહ એ બધું બળીને ખાક થઈ જાય છે. તમે જોજો કે બહુ બરફ પડે ને તો જે વૃક્ષો છે ને એ બરફની ઠંડીમાં સુકાઈ જાય, બળીને સાફ થઈ જાય. એવી રીતે આ ઉત્તરાયધ્યન એ શિશિર ઋતુ છે કે જેમાં આપણા બધા દોષો બળીને સાફ થઈ જાય છે. તો કે ઉત્તરાયધ્યન વસંત ઋતુ છે કે જેમાં આત્માના ગુણો રૂપી ફૂલો ઉગે છે. તો ઉત્તરાયધ્યન હેમંત ઋતુ છે કે જેમાં પવન, જેમ હેમંત ઋતુમાં પવન ફૂંકાય અને બધી ધૂળો ઉડી જાય, એ રીતે આત્મા પર જે કર્મરૂપી ધૂળ લાગેલી છે તે હેમંત ઋતુમાં એ ઉડી જાય છે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં જેમ બળીને ખાક થઈ જાય, એવી રીતે આપણા આત્માના દોષો બધા બળીને ખાક થઈ જાય છે. આવી રીતે અનેક વિધ ઉપમાઓ આ ઉત્તરાયધ્યનમાં આપવામાં આવેલી છે. ઉત્તરાયધ્યન ખૂબ ઉત્તમ, બહુ સુંદર 36 અધ્યયનો છે. આપણે એના 36 અધ્યયનો ટૂંકમાં જોઈશું, કયા કયા અધ્યયનો શું આપેલું છે. જેટલા લેવાય એટલા લઈશું. સૌથી પહેલું અધ્યયન છે વિનય અધ્યયન. જો આપણે પહેલા સમજી લઈએ કે ઉત્તરાયધ્યન જે છે આખું સંયમી જીવન કેમ ઉત્તમ થાય, સાથે સાથે શ્રાવક જીવન બી કેમ ઉત્તમ બને, એવું ભગવાને પોતે વિચાર કરી અને છેલ્લા 16 પ્રહર ઉત્તરાયધ્યન દ્વારા ઉપદેશ આપેલો છે. પહેલું વિનય અધ્યયન છે. વિનય અધ્યયનમાં આપણામાં વિનય ગુણ નું શું મહત્તા છે, વિનય ગુણ થી શું પ્રાપ્ત થાય, વિનય ગુણ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો મૂળભૂત ગુણ છે. એ વિનય ગુણની વાત કરી છે. શિષ્યો ગુરુ પ્રત્યે કેવી રીતે વિનય બતાવે, પોતાના પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે વિનય દ્વારા ગ્રહણ કરે, અને કોઈ બી અવિનય થયો હોય એનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે લે, આ બધું વિનય અધ્યયનમાં ભગવાને બતાવેલું છે. ત્યાર પછી પરિસહ અધ્યયન છે. બીજું છે પરિસહ અધ્યયન. એમાં આપણે 12 પ્રકારના પરિસહ ભગવાને, પરિસહ એટલે મુશ્કેલીઓ, એને ઉપસર્ગ કહેવાય. પરિસહ એટલે સંયમ જીવનમાં જે પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડતી હોય છે એ પરિસહોનું વર્ણન કરેલું છે. તો 22 પ્રકારના પરિસહ હોય છે. મુશ્કેલીઓ આવે છે. કેવી મુશ્કેલીઓ આવે? કે ઠંડી બહુ પડે, ઠંડી સહન કરવી પડે. સંયમ જીવનમાં વિહાર કરતા હોય તો રસ્તામાં બહુ ઠંડી પડે. રાત્રે એવા કોઈ મકાન મળે કે જ્યાં કોઈ બારણા બી ન હોય, એમને સુવા માટે નીચે ફક્ત ખાલી એક કામળ હોય ને શરીર પર એક શાલ હોય, થરથરતી કડકડતી ઠંડી હોય, પવન ફૂંકાતો હોય, આ બધું સંયમ જીવનમાં સહન કરવું પડતું હોય છે. હવે ઠંડીનો પરિસહ, ગરમીનો પરિસહ,
ધગધગતી રહેતી હોય અને મુનિ ભગવાન ચાલતા હોય. આપણે ત્યાં એક સુંદર દાખલો આવે છે કે ગુરુ ભગવાન એક રાજા છે, દીક્ષા લીધેલી હોય છે, તાજેતરમાં દીક્ષા લીધેલી છે અને ખૂબ ગરમી પડેલી હોય છે અને બપોરે એ ગુરુ ભગવાન જે રાજા હોય છે એ પોતાના ગામમાંથી નીકળેલો છે વિહાર કરતા. એક બ્રાહ્મણ મળે છે. બ્રાહ્મણે છે કે રાજા તો દીક્ષા લઈ લીધી છે, એટલે મસ્કરી કરવાનું મન થાય છે. એટલે રાજા એમને પૂછે છે, એ મુનિ ભગવાન, કે આ રસ્તો ગામ તરફ જાય છે, રસ્તો આખો ખૂબ તપેલો હોય છે, ને બીજો એક રસ્તો છે જે માટીનો રસ્તો હોય છે, એમાં જાય તો ગરમી ઓછી લાગે. પણ બ્રાહ્મણ એની મસ્કરી કરવાનું મન થાય છે. રાજાને કહે છે કે આ સીધો રસ્તો છે, તમે જાઓ. રસ્તો આખો ગરમીથી તપેલો છે. એ મુનિ ભગવાન રસ્તા પર જાય છે. બ્રાહ્મણ એમ છે કે એક પગ પડતા રાજા ચીસ પાડશે. એ રાજા જાણે કશું બન્યું નથી એમ રસ્તા પર ચાલે છે. બ્રાહ્મણ આવીને રાજાને પગે પડે છે કે તમને ગરમી લાગતી નથી? તો રાજા કહે છે કે મુનિ, હવે અમારું સંયમ જીવન છે, આ બધું શીતળતા છે, આ શીતળતાથી મારા કર્મો ની નિર્જરા થઈ રહી છે, મને એનો આનંદ છે. આવું આ સંયમ જીવન, આવા પરિસહો આ સંયમ જીવનમાં સહન કરવાના હોય છે. ભૂખ સહન કરવાની હોય, ઉપવાસ હોય, પારણું હોય, વિહારમાં હોય, અને ત્યાં એવા કોઈ ઘરો ના હોય કે જ્યાં એમને ગોચરી મળે. કોઈને ત્યાં જાય, કોઈ અપમાન કરીને કાઢી પણ મૂકે. આ બધી વસ્તુ સંયમ જીવનમાં સહન કરવાની હોય છે. આવા એવી રીતે જેવી રીતે પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ હોય, એવી રીતે અનુકૂળ ઉપસર્ગો બી હોય. કોઈ ઠેકાણે પોતાના પરિવારજનો ખૂબ આગ્રહથી બધો સંસારની બધી વાતો કરતા હોય અને મુનિ ભગવાનને સંસાર પ્રત્યે લઈ જાય, અને આ બધા દોષો, આ પ્રકારના પરિસહો આ ઉત્તરાધ્યયનના બીજા અધ્યયનમાં બતાવેલા છે. અને એમાં કેવી રીતે ક્ષમતાથી સહન કરવું, પરિસો વખતે કેવી સહનશીલતા બતાવી, આ બધું બીજા અધ્યયનમાં આવેલું છે. ત્રીજા અધ્યયન છે ચતુરંગીય, એનું નામ છે કે આ જીવને ભગવાને બતાવેલું છે કે આ જીવને 4 દુર્લભ વસ્તુઓ છે. કઈ 4 દુર્લભ વસ્તુઓ છે સંતોષબેન? ये जीव को 4 दुर्लभ वस्तु क्या है? सबसे पहले मनुष्य जीवन। बिल्कुल। मनुष्य जीवन में धर्म का श्रवण, सदगुरु का योग श्रवण। हमको मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। उत्तरायण में बताया है कि मनुष्य जीवन क्या कैसे दुर्लभ होता है। ये सब बात आज नहीं करेंगे जी। लेकिन मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। देखो, दीपक चोपड़ा जो थे, दीपक चोपड़ा का नाम आप सबने सुना होगा, जो यूएसए में आध्यात्मिक गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं। उसने अपने एक प्रवचन में बताया था कि जो एक्स वाई, जो क्रोमोसोम्स का रंगसूत्र का संयोजन होता है और जो मनुष्य पैदा होता है, जो संयोजन होता है, जो प्रोबेबिलिटी है कि 1 in a billion, उसने ऐसा बताया था डॉक्टर ने। तो मतलब ऐसा है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। देखो, आज हम देखते हैं, तो चैतल के साथ एक बात हुई थी, तो एक अलियाना में मैंने बताया था, जो कीड़ी है, छोटे छोटे जीव कीड़ी जैसे कितने हैं, दे आर इन ट्रिलियंस ओनली इन अलियाना। तो सुलभ जीव जो बोलते हैं वो असंख्य होते हैं, और उसमें पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले उससे कम, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय वाले उससे कम, और पंचेंद्रिय उससे भी कम, और पंचेंद्रियों में 3 से तो मनुष्य उससे भी कम।
तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ जीवन में देखो, गुरु भगवान के श्रवण कितने सुन सकते हैं? परसेंटेज आप रखिए। बिल्कुल। आज भारत में भी हमारी बस्ती ये 1% नहीं है, तो पूरे विश्व में वी आर नॉट इवन 0.5%। तो धर्म का श्रवण कितने आदमी को पॉसिबल है? देखो, तो उसमें अच्छा धर्म का श्रवण सुनते हैं, तो उससे भी दुर्लभ क्या है? वो सुनने के बाद धर्म के प्रति श्रद्धा होना, श्रद्धा, श्रद्धा। तो उससे भी दुर्लभ है। अगर हमारी श्रद्धा धर्म के प्रति, भगवान के वचन के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, तो मनुष्य जीवन में हमारा काम बन जाता है। लेकिन हमारी श्रद्धा वो नहीं होती है। हमको कल किसी ने बोल दिया, देखो मैं कभी कभी ये एग्जांपल देता हूँ। देखो, हमको सुख है ना, भगवान की बातों में जो बताया उसमें सुख नहीं लगता है। हमारा सुख का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो अलग है। सुख का जो आधार है हमारा शरीर है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये हमारे सुख का आधार है। भगवान ने जो सुख का आधार बताया है ना, वो आत्मा है। ये चारों जो है वो दुख का आधार बनाया है। लेकिन भगवान के ये वचनों के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत कम है, और श्रद्धा से भी दुर्लभ क्या है? आचरण, आचरण। 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 हमारी श्रद्धा हो गई, लेकिन हम कार्य कर नहीं सकेंगे। हमारा मन नहीं होता है, संयोग नहीं आता है, निमित्त नहीं आता है। इसी कारण हम हमारा जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं होता है। हाँ, देखो, पानी तना चढ़े भाई, शरीर काम नहीं करता है, डोली वालों को बुला लो। मतलब हमको देखो, नौकार से एक उपवास नहीं कर सकते हैं। मन मन हमारा एक उपवास नहीं करने देगा, एक आमेल नहीं करने देगा। श्रद्धा की बात नहीं है, वो वीर्य उत्साह की बात है। तो ये सब बात चतुरंगीय जो तीसरा अध्ययन है उसमें बताई गई है। बाद में है असंख्यम अध्ययन, चौथा अध्ययन है। उसमें जीवन की क्षण भंगुरता बताई गई है। बताया है कि जीवन हमारा कैसा क्षण भंगुर है। जैसे एक पत्ते पे पानी का बूंद गिर जाए और पानी का बूंद पत्ते पे कितने समय रहे, ऐसा हमारा जीवन है। हमको पता है मृत्यु हमारा होने वाला है, लेकिन हम मानते नहीं है कि हमारा मृत्यु होने वाला है। हम वो नहीं मानते हैं कि हमारा मृत्यु कब आएगा। जीवन क्षण भंगुर है। भगवान ने ये बात बताई है। देखो, हमारे सामने कितने एग्जाम्पल है। अभी ये साइरस साहब जो पालन पालन जी से के ग्रुप के हेड, 60,000 करोड़ के जो मालिक थे, वो एक ही क्षण में कार एक्सीडेंट में मर गए। उसको एक क्षण पहले पता नहीं था कि मेरा मृत्यु होने वाला है। ये जीवन क्षण भंगुर है, ये बात भगवान ने बताई है। तो इसीलिए हमें हमेशा जागृत रहने का है। हमारा मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो भगवान ने ये अध्ययन में सतत जागृत आत्मा के प्रति हमारी सतत जागृति रखने की बात कही गई है कि जैसे हमारा मृत्यु आवे तो हमारा असमाधि में मृत्यु नहीं जाए। ये बात चौथे अध्ययन में की गई है। पांचवें अध्ययन में अकाम मरण, मतलब हमारा जो मृत्यु है वो जागृति में होना चाहिए। पंडित मरण होना चाहिए। बाल मरण, अज्ञानी मरण नहीं होना चाहिए।
कैसे होना चाहिए, मरण का इच्छा पूर्वक स्वीकार करो, समाधि मरणन की बात उसमें की गई है। उसके बाद जो छठा अध्ययन है उसका नाम है शुल्लक निर्गन अध्ययन। उसमें मोक्ष मार्ग कैसा है, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये सब छठे अध्ययन में बात की गई है। सातवें अध्ययन है वो निर्गन स्वरूप का वर्णन है, एलक अध्ययन बोलते हैं उसको। उसमें संयमी जीवन में आसक्ति का त्याग कैसे करना चाहिए वो बात कह गई है। बाद में आठवां अध्ययन है कपिल केवली अध्ययन। उसमें कपिल मुनि की बात की गई है, कपिल मुनि का पूरा चरित्र है उसमें। लोभ का तो मैं जरा उसमें लोभ हम्म लोभ का वर्णन आता है ना उसमें, लोभ। कपिल मुनि का चरित्र आपको पता है संतोष में? जी मुझे थोड़ा बहुत पता है, जो सुनते हैं अपन। वो कपिल मुनि को दो, मतलब राजा ने कहा कि कुछ भी मांगो, उसने जाके सबसे पहले जगाया था सुबह, तो बोले कुछ भी हाँ मांगो तुम, कुछ भी मांगो। हाँ तो उसने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। फिर जाता है जंगल, बैठता सोचते सोचते 2 मास से राज्य, राज्य से वो सब कुछ, सब फिर वैराग्य आ जाता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कपिल एक ब्राह्मण पुत्र था। उसने कहा लोभ की कोई सीमा नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। हम्म बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कपिल क्या एक ब्राह्मण पुत्र था, वो छोटा था तो उसके पिता राज के धर्मगुरु थे, बहुत विद्वान थे। लेकिन उसके पिता का मृत्यु हो गया, वो छोटा था तब। तो राजा ने कोई दूसरे पंडित को अपने राजगुरु बना दिया। वो पंडित रोज हाथी पे जाता था, कपिल छोटा था वो देखता था, उसको बहुत दुख होता था कि अगर मैं पंडित हो गया होता तो मुझको भी ये हाथी पे बैठने का मिलता। तो उसने अपनी माता को एक दफे बात बताई, माता को बोला कि मुझको भी राज पंडित बनने का है, मेरे पिता थे तो मैं क्यों ना बनूं। माता ने बोला कि देखो ये राज में अभी दूसरा पंडित आ गया है, तुम यहाँ अच्छी तरह अभ्यास नहीं कर पाओगे, तुम दूसरी जगह पे जाओ, वहां जाके अभ्यास करो। तो उसके पिता के जो एक मित्र थे ब्राह्मण, उसके पास उसको भेज दिया, दूसरे नगर में गया। कपिल बहुत होशियार था, युवान हो गया था, बहुत अच्छी तरह पढ़ता था। तो जो वहां रहता था तो वो उसके खाने के लिए एक राजा की दासी आती थी, उसको रोज खिलाती थी। तो सुप्रीम दोनों मास्टर। में प्रेम हो गया, दासी और कपिल में प्रेम हो गया। प्रेम इतना हो गया दोनों ने निर्णय कर लिया कि हमको अभी लग्न करने का है। लेकिन पैसे थे नहीं कपिल के पास, कपिल तो पढ़ने के लिए आया था, कमाने का कोई साधन नहीं था। तो जो राज्य के राजा थे वो नगर के, वो उसका एक व्रत था कि सुबह में जो पहले आ जाए तो उसको 20 मास जो वजन था, 20 ग्राम जैसा कुछ था, वो सोना देता था। तो कपिल दासी ने उसको बताया कि तुम सुबह में जाओ, वो एक ही आदमी को देता था, जो सुबह में पहला आया उसको दान दे देता था। तुम पहले पहुंच जाओ तो तुमको वो मिल जाएगा पैसा, तो हमारा लग्न हो जाएगा और आराम से हम जी सकेंगे। तो कपिल ने निर्णय किया कि मुझको पहले पहुंचने का है, तो मैं आधी रात को ही पहुंच जाऊं दरवान के पास, खड़ा हो जाऊं, तो मेरा पहला नंबर लग जाएगा। तो कपिल आधी रात में वो साल ओढ़ के निकला। लेकिन उसका नसीब कुछ अलग था। जैसे वो निकला और महल के पास आया तो वहां के संतरी ने समझा कोई चोर आया है, उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया और उसको जेल में बिठा दिया। कपिल ने बहुत बताया लेकिन वो संतरी सुनने वाले नहीं थे। दूसरे दिन उसको राजा के पास ले गए, बोले कि हम चोर को पकड़ लाए हैं।
राजा ने कपिल को देखा, मुंह पे तो लगता था चोर नहीं है। पूछा, तुम कौन हो? तो कपिल ने सब चीज बता दिया। कपिल सारस था, सरल था। उसने बता दिया कि ऐसा है, मेरे पिता ऐसे थे, मैं यहाँ आया, मैं पढ़ रहा था, प्रेम हो गया, तो पैसे के लिए मैं आपके पास आया था। राजा राजा ने सोच लिया कि ब्राह्मण पुत्र है, होशियार भी है, पंडित भी है। तो राजा ने उसको बताया कि तुम ऐसा करो, तुम तुम जो आप इच्छा करो मैं दूंगा, मैं तुमसे खुश हूं। तो कपिल ने सोचा कि मुझको जो 20 मास सोना मिल रहा चाहे मैं मांगू, लेकिन उसको लगा कि 20 में मांगूंगा तो क्या मिलेगा। तो राजा के पास सोचने का समय मांगा, आप मुझको थोड़ा समय दो, मैं सोच के बताता हूँ। राजा ने बोला, कोई बात नहीं, तुम सोच के बताओ, जो मांगेगा आपको मिल जाएगा। कपिल अपने घर पर पहुंचा, दासी के पास, सोचने लगा मैं क्या मांगू। पहले लगा 20 मासा, मेरा उससे घर नहीं बनने वाला है। 40 मासा, 80 मासा, ऐसे करते 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 उसका लोभ बढ़ता गया। मैं राज क्यों ना मांग लूं, और मैं राजा का राज मांग। कभी जैसा ऐसा सोच में आया तो उसके अंदर एक जागृति हुई। उसने सोचा कि मैं कहां से कहां पहुंच गया, एक लोभ ने मुझको कहां से कहां ला दिया। जो राजा मुझको सब देने वाले थे, उसका ही राज मैंने छीनने का सोच लिया। खरेखर ये लोभ बहुत बुरी चीज है, संसार बहुत बुरी चीज है, और ऐसे संसार में रहने का कोई कारण नहीं है। संसार में रह के मैं सुख नहीं पा सकूंगा। और तब उसने श्रमण बनने का निर्णय ले लिया, साधु बनने का। और फिर वो राजा के पास गया। राजा ने बोला, कपिल क्या सोचा? कपिल ने बताया, राजा जी, आपने मुझको नई राह दिखा दी। अभी मुझको किसी की जरूरत नहीं है, न तो दासी की जरूरत है, न तो सोने की जरूरत है। मैं अभी यहाँ से निकल के मैं श्रमण बनना चाहता हूँ। और कपिल ने फिर साधु धर्म अंगीकार किया, और वहां आगे बढ़ के उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये पूरी सब कपिल केवली, ये अध्ययन में सब बात आती है। बाद में है नवी नमी प्रवज्या, उसमें जो 4 स्वयंभूत महापुरुष हो गए, उसकी बात है। बाद में है ध्रुम पत्रक। ध्रुम पत्रक में, ध्रुम पत्रक का मतलब है, ध्रुम पत्रक का मतलब है पानखर का पान। जैसे पानखर ऋतु में पान सब गिर जाते हैं, इसी तरह संसार में, संसार की सब संपत्ति ऐसे गिर जाती है, और संसार के प्रति अपना जो तृष्णा है, तृष्णा छोड़ने की बात की गई है। ये ध्रुम पत्रक अध्ययन है, वो 10वां अध्ययन है। 11वां अध्ययन है बहुसूत्र। उसमें बहुसूत्र महात्मा के, महापुरुषों की बात की गई है। बाद में हर केसीय मुनि, हर केसी मुनि का जीवन चरित्र है। हर केसी एक कुल से चंडाल था, और चंडाल होके फिर वो श्रमण मार्ग, श्रमण जैन धर्म अंगीकार करता है, श्रमण बनता है, और वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो अपने यहाँ जाति का कोई बात नहीं है, ऐसी बात भगवान ने हरिकेशी मुनि के जीवन द्वारा बताई है। हमारे वहाँ कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है,
अपने कर्मों से चंडाल होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, अपने कर्मों से क्षत्रिय होता है, अपने कर्मों से वो श्रमण होता है। ऐसी बात भगवान ने हर किसी मुनि अध्ययन द्वारा बताई गई है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। इस जमाने में, जो जमाने में जातिवाद चलता था, देखो अभी भी जातिवाद चलता है। तुमने इंडिया का पॉलिटिक्स पूरे जातिवाद पे चलता है। वो जातिवाद अभी भी चलता है। उसी समय की बात है, भगवान ने बताई कि चंडाल कोई जाति नहीं है, वो अपने कार्यों से चंडाल होता है। भगवान ने बताया ब्राह्मण वो अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्मचर्य धारण करता है वो ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ, हिम्मत, साहस से क्षत्रिय होता है, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है, अपनी देश की रक्षा करता है। ऐसे कर्मों से वो क्षत्रिय होता है। इसी तरह भगवान ने बताया कि जातिवाद नहीं, कर्मवाद आगे है। तो ऐसे हर किसी मुनि अध्ययन द्वारा, उत्तरायण द्वारा भगवान ने ये बात कही गई है। देखो ये उत्तराध्ययन भगवान जो 16 प्रहर देशना दी, उसी समय भारत देश के 18 राजा मौजूद थे। पूरे भारत देश के जिसके हाथ में थे, पूरे भारत देश के 18 राजा ये भगवान के वाणी के सुनने के लिए हाजिर थे। चेरा राजा, मगध के राजा, अस्सीपाल के राजा, बड़े बड़े नेपाल के राजा, सब राजा भगवान की वाणी सुनने के लिए आए थे। ऐसा माहौल था और भगवान ये सब बात बता रहे हैं। एक एक कथा देकर भगवान सबको बता रहे हैं धर्म का मार्ग, संयम मार्ग। और उसमें बात एक कही गई है। बाद में चित्र संबोधि अध्ययन, चित्र संबोधि दोनों मित्र है और उसका जीवन कैसे बीता। संबोधि भाई थे ना, भाई थे ना हुक्म, भाई थे ना, भाई थे, भाई। भाई थे। और संबोधि अपने संयम जीवन में दोनों बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन संबोधि एक दफे बैठे थे और राजा की रानी उसको वंदन के लिए करने के लिए आई। जैसे रानी ने अपना सिर झुकाया, उसका बाल संबुद्धि के पग पे स्पर्श हो गया। संबुद्धि का मन विचलित हो गया और उसको लगा कि संयम जीवन का भी क्या जरूरत है। जिसका बाल इतना कोमल है, उसका शरीर कितना कोमल होगा। उसका जीवन अभी उसका वो बदल गया और उसने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली, अपना वरदान नियाना बोलते हैं, मांग लिया भगवान से कि मेरा संयम का जो कुछ फल मिलना है तो मुझको ऐसा नेक्स्ट वो राजा ऐसा मैं चक्रवर्ती बनूं और मुझको ऐसी स्त्रियों का संबंध मिले। तो दूसरे भूमि में चक्रवर्ती बनते हैं ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। हाँ। और जो उसके जो भाई मुनि थे, उसने वो ज्ञानी थे, उसने देख लिया कि अपना भाई का पतन हो गया है। चक्रवर्ती होके वो संयम जीवन भूल के भोग की ओर बढ़ गए हैं। भाई ने बहुत समझाया लेकिन वो समझ नहीं पाया और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सातवीं नरक में गया। और जो ये चित्र मुनि है वो मोक्ष मार्ग के प्रयाण किया। ये सब बात ये अध्ययन में की गई है। देखो उत्तराध्ययन में बहुत कथाएं हैं, एक कथा है, एक एक कथा के पीछे कुछ न कुछ अर्थ है। ये आसक्ति के लिए, देखो संसार के जो काम वासना है उसके पीछे आसक्ति के लिए जीवन कैसा बन जाता है, वो बात बताने के लिए भगवान ने अध्ययन में बात की गई है। बाद में है यीशु कार्य, जो यीशुकार करके राजा है,
कमलावती रानी है और इस नगर में एक ब्राह्मण दंपति है, पति पत्नी है, उसके दो पुत्र है। दो पुत्र संयम लेना चाहते हैं, ब्राह्मण है और संयम लेना चाहते हैं, ब्राह्मण उसको समझाता है संयम नहीं लेने के लिए। और दो पुत्र ब्राह्मण अपने माता पिता को समझाता है कि संयम क्यों लेना चाहिए। ब्राह्मण दंपति उसको राजा के पास ले जाते हैं। अभी दो पुत्र राजा को समझाता है संयम क्यों लेना चाहिए, राजा उसको समझाता है कि भाई संयम क्यों नहीं लेना चाहिए। ये सब बात बहुत अच्छी तरह, ये सब संवाद इसमें है। और बाद में दो ब्राह्मण पुत्र, माता पिता और राजा और उतनी पत्नी सब संयम लेते हैं। ये सब बात उसमें बताई गई है। बाद में 15वां अध्ययन है सभिक्षु अध्ययन। उसमें संयम मान के उत्तम आचार को बताया गया है। बाद में ब्रह्मचर्य गुप्ती, ब्रह्मचर्य के 10 स्थानों की बात की गई है। बाद में है श्रमणीय अध्ययन, तो उसमें पाप स्थानों का जो पाप स्मरणीय, उसमें पाप स्थान कौन से है श्रवण जीवन में और उसका त्याग कैसे करना चाहिए, ये सब बात की गई है। बाद में संयतीय अध्ययन है, संयम राजा की कथा है। बाद में मुर्गा पुत्र की कथा है। सब कथा देखो भगवान ने कथा के माध्यम से पूरा धर्म बताया है। तो आज भी ये कथा महापुरुष से सब कथा प्रवचन में हमको सुनाते और धर्म के मार्ग बताते हैं। तो मुर्गा पुत्र के बाद संतोष में आपको पता होगा कि बलभद्र राजा मुर्गापति का पुत्र मुर्गापुत्र था। उसको जातीय स्मरण ज्ञान हुआ और वो दीक्षा लेने के लिए अपने माता पिता के पास गए। माता पिता तैयार नहीं थे, तो उसके दोनों के बीच में जो संवाद है और मुर्गा पुत्र ने माता पिता को किसी तरह समझाया और उसने मुर्गा पुत्र ने संयम ले लिया और आगे वो मोक्ष मार्ग के प्रति कैसे प्रयाण किया, ये सब बात उसमें है। 20वां है महानिर्गंथ्य। देखो यहाँ सैनिक राजा और अनाथ मुनि की बात है। सैनिक महाराजा का जो परिवर्तन हुआ अनाथ मुनि को मिलने के बाद, ये सब बात ये उत्तरायण के 20वें 20वें अध्ययन में है। उसको महानिर्गंथ अध्ययन बोलते हैं। सैनिक महाराजा ये अनाथ मुनि को मिलने के पहले अपना पूरा जीवन भोग सुख में थे। दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि थे तब तक। मिथ्या दृष्टि थे वो धर्म में, भोग विलास में। हाँ, भोग विलास में थे। वो शिकार करने के लिए जाते थे। मगध देश के राजा थे, अनेक पत्नी थी। उसका जीवन ऐसा था, भोग सुखी जीवन है, सत्ता जीवन है, पावर जीवन है। बहुत बलवान राजा थे, पूरे मगध देश के राजा थे। और मगध देश इसी समय भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य था, बहुत ताकतवर राज था, उसके राजा थे। और अनाथी मुनि को वो मिले, बहुत बढ़िया बात है, बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन अनाथी मुनि राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, बहुत बढ़िया उद्यान थे। राजा थक गए थे और ऐसे उद्यान में आगे गए तो उसमें देखा एक युवान बहुत ही सौंदर्यवान एक मुनि भगवंत ध्यान में खड़े हैं। सैनिक को आश्चर्य हुआ कि ऐसे सौंदर्यवान पुरुष ऐसे यहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है। तो उसको उसके प्रति जानने का मन हुआ। ऐसा ये तो बहुत
सौंदर्यवान है और कुछ अच्छे घर के लड़का है, राजपुत्र जैसा लग रहा है, तो मैं उससे बात करूं कि सब छोड़ के यहाँ क्यों आया है, और अगर उसको कुछ मुश्किल है तो मैं मेरे राज्य में ले जाऊं, तो मेरे साथ उसको रखूं। ऐसा उदार दिल था। तो वहां बैठ गया। तो जो मुनि थे, उसका नाम बाद में अनाथि मुनि हुआ। तो वो मुनि की आंख खुली, ध्यान में से बाहर आए, तो सामने देखा कि राजा खड़े हैं। तो सैनिक महाराजा ने उसको पूछा कि भाई, आप तो इतने खूबसूरत है, इतना यौवन है, इतना खूब सुंदर शरीर है, तो आपको ये सब भोग सुख छोड़ने के बजाय आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कौन सा दुख है आपके जीवन में, ये सब छोड़ के आ गए हो यहाँ? तुम अनाथ क्यों हो? ऐसा सैनिक महाराज ने पूछा। अगर आप अनाथ है तो मैं नाथ हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, तुम मेरे साथ आ जाओ, आपको कुछ कोई दुख नहीं मैं आने दूंगा। अनाथि मुनि सब सुनते हैं। फिर अनाथि मुनि राजा को बताते हैं कि राजा, अनाथ मैं नहीं हूं, अनाथ तो तुम हो। सैनिक को आश्चर्य होता है, पूछता है, बताता है कि तुम मुझको अनाथ क्यों बताते हो? मैं तो राजा हूं, मैं चाहे वो कर सकता हूं। अनाथि मुनि ने पूरा अपना जीवन बताया कि मैं राजा था, मैं राजपुत्र था, मेरे पीछे मेरे माता पिता सब मेरी भक्ति प्रेम दे रहे थे, और एक दिन मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया। ऐसा रोग हुआ, सबसे बढ़िया वैद्य को बोला गया, डॉक्टर को बताया गया, लेकिन मेरी शरीर में दहा कम नहीं होती थी। पूरा शरीर में जलन होता था। मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे मित्र सब मेरे आजू बाजू खड़े थे। सब मुझको कुछ तो कोई दवाई देते थे, मेरे शरीर में कुछ अच्छा मलहम दे रहे थे, लेकिन मेरा घाव खत्म नहीं होता था, वो बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरे मन में विचार आया कि मेरे दुख को कम करने वाला ये जगत में कोई नहीं है, मैं सचमुच अनाथ हूँ, और ऐसे संसार में रहने का क्या प्रयोजन। मुझको खुद को नाथ बनना चाहिए। और उसी समय मैंने निर्णय लिया कि अगर मैं ये संसार छोड़ दूं और मैं नाथ बन जाऊं, जैसे मैंने निर्णय लिया, मेरे माता पिता को मैंने बताया, कभी मुझको इस संसार में रहने का नहीं है, और मुझको संयम लेने का है, मुझको श्रमण बनने का है। जैसे मैंने निर्णय लिया, क्या मालूम अपने आप ये दहा खत्म हो गया, और मैं श्रवण बन के यहाँ खड़ा हूँ। राजा, जब शरीर में रोग आता है तब कोई बचाने वाला नहीं होते, तुम अनाथ हो। सैनिक ने सुना, सैनिक का जीवन का यहाँ परिवर्तन हो गया। सैनिक ने सोचा, सचमुच मैं अनाथ हूँ, मैं मृत्यु पाऊंगा, मेरा भी मृत्यु होगा, अब मुझको अकेला ही जाने का है, कोई मेरे साथ आने वाला नहीं। और तभी सैनिक का मिथ्यात्व यहाँ खत्म होता है, और यहाँ से सैनिक भगवान महावीर के पास जाते हैं। भगवान उसको धर्म मार्ग बताते हैं। धर्म क्या है, धर्म मार्ग क्या है, नाथ क्या है, अनाथ क्या है, ये सब ये महानिर्गंथ
अध्ययन में भगवान ने बताया है। तो यहाँ तब से ये मुनि अनाथि मुनि कहलाते। बाद में है समुद्र पातीय संयम जीवन पर का ग्रंथ है। बाद में रथ नेमिया। देखो राजूमती और रथ नेमी की जो कथा है ये उत्तरायण में बताई गई है। बहुत जाने दी कथा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन हो गया आज जो 9 बज गए। फिर केसी गौतम एक कथा, बाद में केसी गणधर जो पार्श भगवान के जो गणधर थे, और गौतम स्वामी। मैंने मैंने पूरा लिया है उसके प्रश्न और जवाब, ये उसमें है। बाद में समिति है, 5 समिति, 3 गुप्ती, संयम जीवन के जो है 8 माता, उसकी बात की गई है। फिर यज्ञीय, जय घोष, विजय घोष, 2 ब्राह्मण भाई है, उसके संयम जीवन उसने कैसे लिया उसकी बात है। समाचारी साधु जीवन की सामान्य दिनचर्या रात्रिचर्या की बात है। बाद में खलुम किया दुष्ट बलद के अविनय शिष्य, अविनय क्या होता है, उसका जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, ये सब बात है। मोक्ष मार्ग गति, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सम्यक पराक्रम, द्रव्य गुण पर्याय, जो 6 द्रव्य है उसकी बात ये उसमें है। तपो मार्ग, तप मार्ग द्वारा कर्म निर्जरा, तृष्णा गर्द है। चरण विधि, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना, ये सब सिद्धांत की सब बात है। देखो मैंने बताया था कि जो 6 अध्ययन सैद्धांतिक अध्ययन है, ते तप है, द्रव्य गुण पर्याय है, तपो मार्ग है, चरण विधि है, प्रमाद स्थान, अवृत्ति कसाय का स्थान, कर्म प्रकृति, 8 कर्मों का स्वरूप, लेशिया, 6 लेशिया का स्वरूप, ये सब सैद्धांतिक अध्ययन है। भगवान जो धर्म के जो सिद्धांत है वो भी बताते हैं। फिर अणगार, घर त्याग करके अणगार कैसे बनने का, वो 35 का नंबर का अध्ययन है। और जीवाजीव विभक्ति, जीव और अजीव दोनों के स्वरूप, जीव के विभाग, अजीव के विभाग, ऐसे 36 अध्ययन यहाँ उत्तरायण में बताए गए हैं। बाद में देखो मैंने बहुत बढ़िया है, खूब सुंदर है, इसीलिए उसको मेघधनुष, ज्ञान के जो जगत है उसमें समान है। जो बाग है उसमें रंगे रंगी फूल है, जो आत्म रूपी जो बाग बनाया है उसमें रंग बेरंगी उपवन है, ये उत्तरायण बहुत बढ़िया है। उत्तरायण आज भी गुरु भगवंत अपने को बताते हैं, पढ़ने लायक है। कभी भी चांस मिले तो 36 अध्ययन गुजराती में भाषांतर हिंदी में है, आप सब पढ़ो। अभी 2 चूली का बाकी है, एक का नाम है नंदी सूत्र। नंदी सूत्र देखो आज भी साधु भगवान के जीवन में कुछ नया परिवर्तन मंगल है तो मंगल का कार्य नंदी सूत्र सुन के होता है। नंदी सूत्र वो ज्ञान का सूत्र है, उसमें ज्ञान का विभाग है। और ज्ञान का जो विभाग, ज्ञान क्या है, मति ज्ञान, सो ये सब बात उसमें है। नंदी का मतलब है मंगल, और ज्ञान मंगल स्वरूप है, इसीलिए नंदी सूत्र ये मंगल सूत्र है। और साधु जीवन के जिसको अभी जो पन्यास जब दीक्षा लेते हैं तब नंदी सूत्र सुनाते हैं, उसकी पदवी होती है तब नंदी सूत्र सुनाते हैं। ऐसे नंदी सूत्र का महत्व है, चूली का सूत्र है, ये 43वां आगम है। बाद में 44वां अनुयोग सूत्र। अनुयोग सूत्र को बोलता है कि की है, की मतलब ताला को खोलने के लिए जैसे चाबी है, ऐसे पूरा आगम को समझने के लिए अनुयोग सूत्र पढ़ना चाहिए। उसमें सब जो शब्द आते हैं, विशेष शब्द की विशिष्ट व्याख्या अनुयोग सूत्र में, इज ए डिक्शनरी। हाँ, समझ, इट इज लाइक ए डिक्शनरी।
हर एक शब्द के उसके अर्थ, एक अर्थ नहीं अनेक अर्थ उसको बताए हैं। व्यवहार में अर्थ, निश्चय में अर्थ, आचार में अर्थ, सैद्धांतिक अर्थ, ऐसे प्रकार के दरेक शब्द के अर्थ उसके बताए हैं। निक्षेप क्या है, नय क्या है, प्रमाण क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सब बात अनुयोग सूत्र में है। तो अनुयोग सूत्र पढ़ने से आगम सूत्र जो पढ़ते हैं उसके रहस्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे अनुयोग सूत्र है। ऐसे आज 45 आगम के प्रवचन को हम समाप्त करते हैं। आगम बहुत पवित्र है और उसका पठन पाठन, उसको सुनने का हम सबको लाभ मिला। अपने कोई पुण्य से सब हमको प्राप्त हुआ है। भगवान के प्रति हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा उससे बढ़े और भगवान ने जो 45 आगम द्वारा हमारे जीवन को जो अच्छे मार्ग पे चलने का एक प्रयत्न किया है, हम ये सब मोक्ष मार्ग पे चले। हमारे आत्मा में पहले बताया है कि ये सब प्रवचन के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा आत्मा का जो गुण है, गुण में वृद्धि हो, गुणों की गुणाकार हो। हमारे जो दोष है, दोष की बात बाकी हो, दोष का भागाकार हो। गुणों का गुणाकार, दोषों का भागाकार, ये अपने प्रवचन का मूल है, हार्द है। हम ऐसे बढ़े, ऐसे भगवान को हम प्रार्थना। आपके बहुत आभारी हम। बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत 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 ज्ञान दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम मिलके भगवान के मार्ग पे आगे बढ़े। अभी अगला प्रवचन मैंने जैसे बताया, डिफीटिंग डेथ, मृत्यु को महात करने का है। हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमारा मृत्यु समाधि पूर्वक हो। समाधि पूर्वक हमारा मृत्यु कैसे हो, ये सब बात बहुत क्रिटिकल है, बहुत संवेदनशील बात है। हमको वहां ये बात सबको समझने का है। अगले प्रवचन, इसको अपन बोलिए, इसको अपन जन्म पर विजय भी कह सकते हैं, क्योंकि जन्म लेना ही नहीं है अब। जन्म पर विजय भी कहा जा सकता है। हाँ, जन्म पर विजय, मृत्यु पर विजय, जन्म कैसे, जन्म आने के बाद कैसे जीने का, ये सब बात है। बराबर जन्म से मृत्यु तक की जो बात है वो है हाउ टू डिफीट डेथ। करेक्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कुछ प्रश्न है मौली बहन, मनीषा बहन? ના આજે તો નહીં, અમારે અહીંયા વચ્ચે પાવર બહુ ફ્લિકર થતો હતો, એટલે બધું મારે રેકોર્ડેડ થયેલું લેક્ચર સાંભળવું પડશે ફરીથી. વચ્ચે મારે થોડુંક રહી ગયું. ના, ઘણું સારું સમજવાનું મળ્યું અને તમે કીધું એ પ્રમાણે સમય મળે તપાસ કરીને વાંચવાનું પ્રયત્ન કરીશું ડિટેલમાં. ખાસ કરીને જે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતના 6 અધ્યયન છે એ તો કદાચ બીજા બધા કરતા સહેલા લાગે છે, પણ ખબર નહીં. સરસ સરસ, સુંદર ભાવ છે. ભાવ સતત ચાલુ રહે, ભાવમાં વૃદ્ધિ થાય. ભગવાને સંયમ જીવનમાં એક બહુ સુંદર વાત કરી છે, ઉદ્યાનમાં કીધેલી છે કે સંયમ જીવનનું સૌથી અગત્યનું પાસું એ છે કે ક્ષણે ક્ષણે એમાં ઉત્સાહ, આનંદની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. સાચી વાત છે. સંતોષબેન, ધર્મ ક્યારે પ્રાપ્ત કર્યો કહેવાય? ધર્મ આપણે ક્યારે પ્રાપ્ત કર્યો કહેવાય? जब उसी में आनंद आता हो. આપણો આનંદ ક્ષણે ક્ષણે વધે. પણ તમને ખબર છે આપણું જીવન એવું જતું નથી. बिल्कुल सही है. આપણે સામાન્ય કંઈક વાત બને છે અને આપણી પ્રસન્નતા હોરવાઈ જાય છે. हाँ हाँ बिल्कुल. આપણે દૂર કરવાની છે.
આપણે બધી વાતો આ આગલા પ્રવચનમાં કરવાની છે કે આપણે ક્ષણે ક્ષણ આપણું આનંદમાં કેવી રીતે જાય, ક્ષણે ક્ષણ આપણું સમભાવમાં, શાંત ભાવમાં, પ્રસન્ન ભાવમાં આપણા જીવનની ક્ષણે ક્ષણ કેવી રીતે વીતે, એ બધી વાતો આપણે કરવાની છે. એ જ વાતો અહીંયા છે. મૌલીબેને કેવી સુંદર વાત કરી કે ભાઈ મારા જીવનમાં મારે 6 દ્રવ્યમાં કેવી રીતે આગળ વધવું, એના ભાવો મારામાં હંમેશા જીવંત રહે. ખૂબ સુંદર વાત. આપણે બધા બી એ ભાવનાને આપણા જીવનમાં સાદસ કરીએ, વધીએ. આપણે નૌકાર મંત્રથી આજના પ્રવચનને પૂર્ણ કરશું. નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો વજ્જાયાણં, નમો લોયે સપ્પસાહૂણં, એસો પંચ નમુક્તારો સર્વભાવ વિનાશનો, મંગલાણં ચ સંવેશિં પરમં ભવૈમિ. જે કઈ જૈન ધર્મ બોલાયું હોય એ સવી મન વિચિંત કરી. પ્રણામ બધાને. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. આવતા પ્રવચન વખતે બધાને ખાસ યાદ કરજો કે નવું વિષયથી ચાલુ થાય છે. પ્રણામ પ્રણામ પંકજ. જય જિનેન્દ્ર સાહેબ. પ્રણામ.